Okay, so I think so. Hello everyone, and मैं जबीरा हूँ. I'm from Sakha and I'm GLIM coordinator. और सबसे पहले तो I would like to introduce what is GLIM. Okay, so it's a Sakha based organization. और अभी basically हम लोगों का अभी हमारा start है, इतना कुछ हमने काम किया नहीं है, but basically we are working we are working for youth, and our main goals is youth development, solving their problems, and also education, inclusive education. Okay, so after that, youth day. What exactly is youth day? Youth day जो है वो basically it is to address the problems youth is facing, how they can contribute to the development of global goals and also to achieve the local goals. ठीक है ना? And also के we are celebrating this day to celebrate the achievements of youth, right? कि हमारे साथ जो हमारी जो youth है, how they are doing things, what they are doing. Also, it's the youth day celebrated by youth, right? So it's for youth by youth. So now I would like to introduce yourself one by one. First of all, Mohsin, I would like to know about you. Okay, thank you so much, Javeria. I myself is Mohsin Ali from Sakhar. I'm working as United Nations Civic Education Yes. volunteer, or I'm from IBA Sakhar. Basically, मेरा जो है final year है IBA में, और उसके साथ साथ मैं UNDP के सेल्फ प्रोजेक्ट में स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एज अ UN वॉलंटियर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ. हमारा जो काम होता है वो आम लोगों में सिविक एंगेजमेंट और सिविक एजुकेशन को प्रोमोट करना है कि व्हाट बेसिकली सिविक एंगेजमेंट इज, और उसके अलावा जिस तरह बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उनके कौन से राइट्स हैं, उनके ऊपर कौन सी जिम्मेवारियां हैं और जिम्मेदारियां हैं जिनको हम कहते हैं वो कौन सी है, और अपने फॉर इंस्टेंस वोट को कास्ट करना, CNIC का जो है रजिस्टर करवाना अगर वो एलिजिबल हो जाते हैं उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जो भी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 साल. तो मतलब और उसके अलावा उसके साथ साथ जो भी डिफरेंट लिंक है एक्टिविटीज सिविक एजुकेशन के साथ, जैसे आज हम बात करेंगे जिसके ऊपर सिविक एंगेजमेंट. तो इस तरह की एजुकेशन को प्रोमोट करना जो है वो मेरे चंद एक्टिविटीज में से शामिल है. Now I would like Faiza to introduce herself. Faiza, would you please? Yes, assalamu alaikum everyone. My name is Faiza Lako. I've done my bachelor's from Sydney University back in 2017 in English literature. Right now I'm doing my MPhil from Iqra University, Karachi. I'm a U-grade alumnus. I have done my one semester scholarship there in USA, and I visited Thailand as a volunteer. I was a part of Young Social Reformers for 4 years. That's and great. I worked for the youth. And just because of that organization, my work and my services, I visited Thailand and attended one of the seminars there. And now I'm engaged with the PAC US Alumni Network here and working as a volunteer there as well. So this is all about my introduction. See, that's great. And now I would like Hassan to introduce himself, please. Assalamu alaikum. Hassan? Ji. I'm Mohammad Hassan Samejo and Chairman National Youth Forum, and I have worked in Youth Parliament Pakistan as a Secretary of Arts and Culture, and I remained a Youth Ambassador in many organizations in Culture Department, Government of Sindh, in Shahid Afridi Foundation, in Alliance Francaise de Karachi, and now I am working in my own organization as a Chairman of National Youth Forum. Okay, that sounds great. Now our last member, please. Hello, assalamu alaikum. I'm Sadia. Basically, I'm doing BBA right now, business studies. Then, previously, I have been part of Cohort 2020 by Youth Embassy Pakistan, and currently I'm working as a project assistant with Sabrang Society, which is an organization working for the awareness, advocacy, and empowerment of trans and gender diverse people. Further, I'm also doing my volunteer work with some local community-based organizations and some local and international organizations as well.
That sounds great. I think all of you are doing great jobs, great work. Whatever you're doing, it's just fantastic. Okay, so Thank now you so I would like much. to ask some questions from you. I mean, that's our youth. I want to say that that's our youth. Okay, so आप लोगों को क्या लगता है कि what exactly do you think what's mean by youth engagement and at local and global level? क्या लगता है आपको? क्या what do you mean by it? What is actually youth engagement? How would you engage the youth? क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है? Achha, anyone can answer. Mohsin, I would like you to answer first. Mohsin? Okay, Javeria. So the format is like that. One by one हमको ना questions जो है आपको पूछने हैं हमसे. ठीक है? You have to take name Yes, of that. so Mohsin, I would like you to answer. Okay, fine. Okay, sure. That's my mistake. Okay. It's okay. I will cut this part. Fine. So yeah. So if I talk about अगर मैं बात करूँ because हमारी जो language होगी वो उर्दू होगी, right? So अगर मैं बात करूँ youth engagement की तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि can you repeat the question, Javeria? Okay, I asked what exactly do we mean by youth engagement? Like Okay, हम अगर alright. global या local level पे youth को engage कर रहे हैं तो what do you mean by it? Fine. So first of all अगर हम बात करें youth engagement की या उनकी participation की तो सबसे पहले उसका मकसद ही ये होता है कि making difference in their own life और उसके अलावा in the life of citizens जो हमारे शहरी हैं और अपनी community के तो और उसमें ये चीजें Okay. हम किस तरह अचीव कर सकते हैं किस तरह हम जो है वो और हम एज अ यूथ किस तरह जो है हम अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो के डेवलपिंग नॉलेज स्किल्स और वैल्यूज को ठीक है नॉलेज किस तरह की सबसे पहले Okay. अपने अपनी कम्युनिटी की नॉलेज कॉन्टेक्चुअल नॉलेज फिर इसके बाद आते हैं हम जिस माशरे में रहते हैं फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमें उसके जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस की हमारे ऊपर कौन सी जो है वो जिम्मेदारियां आयद हैं इनकी हमें अवेयरनेस और नॉलेज होनी चाहिए सबसे उसके बाद जो है स्किल्स अब स्किल्स Yes. में हमारे पास कौन सी स्किल्स आनी चाहिए फॉर इंस्टेंस अगर हम वॉलंटियर करना चाह रहे हैं तो उस पर्टिकुलर किस एरिया में हम वॉलंटियर करना चाह रहे हैं फॉर इंस्टेंस कोई इन्वायरमेंटलिज्म पे बात करता है कोई कम्युनिटी के इश्यूज के ऊपर सॉल्व करता है जिस तरह हम जो है एजुकेशन को प्रोमोट कर रहे हैं स्पेसिफिकली सिविक एजुकेशन को सो दिस इज सॉर्ट ऑफ स्किल जो कि हम हमारे अंदर हमने डेवलप की है और हम उसको यूटिलाइज करके वी आर मेकिंग डिफरेंस इन आवर कम्युनिटीज ठीक है सो हाउ दे कैन एंगेज देमसेल्व्स so it can be like both political or non-political processes political in a sense के अपने कंट्री के जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस तरह आजकल जो है वो सोशल मीडिया का काफी रुझान है यंग स्टूडेंट्स स्पेशली यंग सिटीजन जो है वो डिमांड कर रहे हैं जस्टिस और उसके अलावा उनके साथ जो भी मसाइल पेश आ रहे हैं वो उनके ऊपर बात कर रहे हैं ट्विटर ट्रेंड्स चला रहे हैं जिस तरह रिसेंटली मोरो नीड्स लाइब्रेरी का ट्रेंड चला था या फिर बोगस डोमिसाइल्स का ट्रेंड चला था तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनकी जारी है दिस इज द सॉर्ट ऑफ सिविक एंगेजमेंट अगर हम नॉन फॉर्मल की बात करें या नॉन पॉलिटिकल की बात करें स्पेसिफिकली तो वो सारी चीजें जो हम में से यहाँ पर जो हर एक पैनलिस्ट कर रहा है अपनी वॉलंटियर खिदमत सर अंजाम दे रहा है आप जो अभी कर रहे हो दिस इज सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज जिसमें हम अपनी जो है वो एज अ यूथ एंगेजमेंट को जाहिर कर रहे हैं सो इन माय ओपिनियन सिविक एंगेजमेंट इज दैट Okay, that sounds great. Anyone of you would like to add into it, or should I move to next question? मतलब मैं अगला सवाल पूछूं या कोई और इस पे बात करना चाहेगा? Okay, may I? Yeah, sure. Of course you can. Okay, so basically the youth engagement at the global or the local level is that means we have to provide, first of all, we need to provide some different kinds of platforms to the youth, means what skills, what qualities, what abilities they have,
and then we have to bring them there at the one platform, and then in this way we can give the benefit to the community from their skills, from their abilities, and also the youth will get to know that what abilities, what skills they have within them, right? And in this way they can not only provide some benefits to the community, but they are going to polish their own skills, their own abilities as well, because this is the era, this is time of you just everybody is showing the talent, everybody is showing their skills, either on YouTube, either on Facebook, either on in any of the fields, right? So this is how we are creating a lot of new opportunities for the youth, and this is the way we can get make themselves engaged in the local or the global level for doing something for the betterment of the society as well as for themselves. Okay. Um, Okay. Thank you so much, Faika. Anyone else? Sadi. Javier, I would like to add in it. बेसिकली हम जब बात करते हैं कि हमें यूथ को स्किल सिखाने चाहिए या यूथ को ये काम करना चाहिए जिससे वो कम्युनिटी हेल्प कर सके, बेसिकली जो एक्चुअल यूथ एंगेजमेंट का मकसद है कि हमें बहुत सारे जो लोग एक्चुअली इस वक्त एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम कर रहे हैं, आई विल नॉट लाइक टू कॉल देयर नेम्स, बट स्टिल यूथ के क्या मसले हैं उन्हें नहीं मालूम है, क्योंकि आज से 20 साल पहले जो मसाइल चल रहे थे वो अब नहीं है। अब यूथ के जो मसले हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं पहले के मसलों के मुकाबले, क्योंकि उसके लिए यूथ की इंगेजमेंट होना, उनकी इन्वॉल्वमेंट होना डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग में, लॉ बनने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर 20 साल पहले अगर किसी के साथ कोई मसला पेश आया है कि वो 2020 में भी वो मसला पेश आया, 2020 के मसले बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। I would agree with you, yes. और मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट माइनॉरिटीज में, डिफरेंट अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटीज उठा रहे हैं या जेंडर डाइवर्स माइनॉरिटीज उठा रहे हैं या फर्दर और माइनॉरिटीज की बात करें, तो हर माइनॉरिटी की जो यूथ है उसके अपने ही अलग मसले हैं। तो जब तक हम उनकी एंगेजमेंट, उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते किसी भी चीज़ में, हमें उनसे पता ही नहीं है, तो हम कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम फलां अपॉर्चुनिटी एक यूथ को दे रहे हैं, तो जब तक हमें मसला ही नहीं पता तो सॉल्यूशन के तौर पर हम अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकते हैं उन्हें? Exactly. So Sadi, you mean that we have to be context specific. That's great. मतलब we have to target the especially the issues. Yeah. जो बेसिकली बेसलाइन रिसर्च होती है वो करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली यूथ की प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर वर्क किया जा सके। Sure, that's great. That's great. अच्छा, now I would like to move towards my next question. अच्छा जी, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोकल लेवल पे एक्शंस ले रहे हैं और तो how it impacts youth globally, मतलब अगर आप यूथ की डेवलपमेंट के लिए लोकली काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कोई ग्लोबल इम्पैक्ट भी है इसका, और अगर है तो कैसे और क्या? Hossein, would you like to answer? थैंक यू जवेरिया। आई थिंक जिस तरह हम मैं अपना अगर एग्जांपल शेयर करूं, बीइंग अ यूनाइटेड नेशन सिविक एजुकेशन वॉलंटियर, तो अगर हम एक कम्युनिटी में जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि CNIC की इम्पोर्टेंस ये है और आपके वोट की इम्पोर्टेंस ये है। स्पेसिफिकली अगर मैं जो है वो 54% जो है हमारी ख़वातीन हैं इस कंट्री में, मतलब ऑलमोस्ट जो है हाफ से भी ज़्यादा हमारी जो मतलब पॉपुलेशन है वो ख़वातीन है। तो अगर हम उनको इग्नोर कर देंगे, उनकी सिविक एजुकेशन को और जो है वो सिविक पार्टिसिपेशन को इग्नोर कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम तरक्की की तरफ जाएंगे। सो हम जब भी जाते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर वोटर एजुकेशन के बारे में उनको इन्फॉर्म करने और वोट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए, तो सबसे पहले हमें बैकलैश यही आता है कि ख़वातीन क्या करेंगी। इस 21st सेंचुरी में भी लोगों का ये जो है वो रवैया है। तो मतलब ठीक है, रवैया तो ये है, लेकिन हम अपने तौर पर जो एज अ वॉलंटियर जाते हैं और वहाँ पर उनको एजुकेट करते हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूँ कि आई वेंट इन अ कम्युनिटी जहाँ पर जो है वो हिंदू माइनॉरिटी थी, और वहाँ पर जो है लोगों के CNIC नहीं बने हुए थे, स्पेशली वुमेन के शादियों के बाद। तो जैसे हम गए, उनको हमने CNIC की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, उनको ये बताया कि औरतों के लिए भी CNIC का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे किसी मर्द या किसी और ख्वाजा सरा के लिए।
क्योंकि वो भी सिटीजन है और उनका भी सेम ही रोल है जिसी तरह एक मर्द का है। तो वहाँ पे जो है वो जैसे हम गए ग्रुप्स के हम ग्रुप्स में जाते थे, तो हम कम्युनिटी में गए, वहाँ पे लोगों ने CNIC बनवाना शुरू किया हमारे उस एजुकेशन को लेके। तो वहाँ पे उस कम्युनिटी में एक चेंज आया, मतलब हमारी एजुकेशन की वजह से, हमारे उस वॉलंटियर वर्क की वजह से हमने लोकल लेवल पे थोड़ा चेंज किया। अल्टीमेटली जब वो आगे जाके अपना वोट कास्ट करेंगी और अपने जो है वो सिटीजन होने का हक अदा करेंगी, तो अल्टीमेटली एक ग्लोबल लेवल पे भी वो चेंज जो है वो जाहिर होगा। सो मेरे ख्याल से ये जो छोटी छोटी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, वॉलंटियर एक्टिविटीज, ये आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सही। Okay, जी मोहसिन, thank you. अच्छा जी, Hassan is not speaking much. Can we get to Hassan? Can he share some experiences? Hassan is with us. जी हेलो जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो हमारी यूथ, अगर हम यूथ के लिए लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हाउ इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल लेवल? जिस तरह मतलब हमारी यूथ है, माशाल्लाह पाकिस्तान की यूथ जितनी एक्टिव है, मैं नहीं समझता किसी और मुल्क की यूथ इतनी एक्टिव होगी। और जितने मौके पाकिस्तान की यूथ को नहीं हैं, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितनी उनको पास फैसिलिटीज़ है वो उतनी करती हैं। मैं दूसरी बात ये कि जिस तरह हमने जो भी कोविड-19 आया था, माशाल्लाह हमारी जितनी भी पाकिस्तान की पूरी यूथ है, उन लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स में उन लोगों ने काम किया है। और मैं आपको एक मेरे दोस्त हैं उनके मिसाल दूंगा। औरंगी के कुछ दोस्त हैं, औरंगी में मैं खुद एक बार विजिट करने गया तो इतनी मतलब गंदा पानी था और इतनी गंदी हालत थी, और मगर कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो ये हमारे यूथ के कुछ लोग थे जो वहाँ तक गए, उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको वहाँ तक खाना पहुँचाया। मगर ये कि जो यूथ के अभी दो तरीके होते हैं, एक तो सोशल काम करना, जो लोगों की हेल्प करना, एक तो वो अलग बात है। दूसरा है कि जैसे आजकल यूथ पार्लियामेंट आ रहा है, जो लफ्ज आ रहा है पार्लियामेंट के मीन्स जो गैप है हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पॉलिटिशियन के बीच में जो यूथ का गैप है, उसको खत्म करने के लिए हमने एक चीज, दो तीन चीजें स्टार्ट की थी। यूथ बैठक स्टार्ट की थी जिसमें हम पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको इंटरेक्शन करवा रहे थे यूथ के साथ, ताकि वो अपने इश्यूज रिजॉल्व कराएं अपने Okay, that's great. जी That's a great initiative. Okay, Sadi, would you like to speak about it? या बेसिकली हमारे लोकल एक्शंस क्या नाम है ग्लोबली कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम अपनी बात करते हैं तो बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जब तक अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो बिल्कुल ड्रॉबैक पे थे हम लोग। कम्युनिटी से ही कुछ लोगों ने स्टैंड लिया, उन्होंने पॉजिटिविटी सामने दुनिया के सामने रखी दैट हम लोग भी जो चीज़ें हम पे मुसल्लत की जा रही हैं उनके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, हम में भी टैलेंट है, हम भी इक्वली आपके साथ शाना बशाना चल सकते हैं। तो अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं और मतलब रिकग्नाइज भी किया जा रहा है और एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। सेम इसी तरीके से पाकिस्तान की यूथ बहुत टैलेंटेड है, बहुत काम भी करती है बेसिकली, हालांकि इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसे की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी। उसके बावजूद यूथ जो है वो आगे बढ़कर काम कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके पाकिस्तान की यूथ काम कर रही है, जिससे ग्लोबली भी मार्क हो रहा है और पाकिस्तान का इमेज ग्लोबली भी इम्प्रूव हो रहा है उस चीज़ से। फर्दर पर्सनल एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात हुई, अभी रिसेंटली अभी कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने तकरीबन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सबरंग सोसाइटी, हमने तकरीबन 250 से 300 फैमिलीज रहती हैं जहाँ हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग गए। तो वहाँ पे जिसमें से कुछ पाकिस्तान की फैमिलीज भी थी, कुछ दूसरी भी फैमिलीज थी। तो उसमें डिफरेंट जो हमें फीडबैक हासिल हुआ तो विच वाज काफ़ी अ काइंड ऑफ हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस, क्योंकि जिस माहौल में लोग रह रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों की जॉब चली गई, कुछ लोगों के साथ और कई तरह के मसले कि 3 लोग घर में कमाने वाले, तो तीनों की ही कोविड की वजह से जॉब्स खत्म हो गई और देन कोई कमाने वाला नहीं, और फिर देन उनके नीचे उनके डिपेंडेंट लोग बहुत सारे हैं, लाइक 8 से 10 लोग उनके डिपेंडेंट हैं। तो बहुत सारे सिवियर इश्यूज अभी रिसेंटली कोविड की वजह से भी देखे गए, जिसको कवर करने की मैक्सिमम कोशिश की गई है। और अभी रिसेंटली जो हमारा ये that's fantastic जी।
जी, जो जी रिसेंट आगे अभी आगे बोलते प्रोजेक्ट है चलिए। हमारा कोविड का, जो जिसके बारे में बात की, इसमें हम लोग ने लाइक न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की, जितनी वो फैमिली थी, और साथ राशन वगैरह प्रोवाइड किया, और कुछ जहाँ तक पॉसिबल था वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमने प्रोवाइड किया। That's great. That's a great initiative. Faiza, would you like to share something? Yes, actually, just wait for a while because a bit electricity issue. Well, yes, sure. I'm going to share my experience. My experience about the volunteer work is that, like most of the work, volunteer work, I was doing before even going to US, right? But the real meaning of the community service and the social work I learned from there, right? And it was a part of a U-grade program कि आपको 20 hours community service anyhow करनी है, right? तो 20 hours community service was a part of the whole program, ठीक है? अगर हम 20 hours community service नहीं करते हैं तो हमें certificate नहीं मिलेगा, right? So like I did my 40 hours community service there, and when I came back, ठीक है, it's been 3 years. I came back from the US, but abhi tak bhi, after every 6 months we get survey. हमें यूएस जो है वो एजुकेशन की तरफ से एक सर्वे आता है आफ्टर एवरी 6 months, और उसमें ये होता है कि हाउ मच वॉलंटियर वर्क हैव यू डन, आपने कितना वॉलंटियर वर्क किया, मतलब लास्ट 6 months में, ओके? सो दिस इज हाउ वी कीप ऑन अपडेटिंग कि लास्ट मंथ में हमने इतना volunteer work किया, and then later after 6 months they are asking us how many people you have motivated for doing the volunteer work and community service, and what was the impact. And I would share when I came back from the US, I started giving the awareness session about the U-grad cultural exchange program on which I went to US. And then जब तक मतलब अभी तक it's been 4 to 5 students, my juniors, they have visited US, ठीक है, just because of that help and the encouragement, and then the volunteer work, because it is included in my volunteer work that whatever I have achieved, I should pass that on to my juniors and my siblings and the community, so that this is how we can bring the change in the community by whatever we have done, whatever we have achieved, and then we pass it on to the others, and then we can see the change. Okay, I see all of you have done some amazing jobs, amazing work you're doing. I really appreciate that. Okay, so do you want to say something, Sadi? Yeah, or should I move to the next question? I want to say something. Okay. Actually, like yes, sure. Basically हम बार बार कहते हैं like sorry Faiza, don't mind that I'm not well, I don't want to offend you or something, but हम बात करते हैं कि community की ये और community ऐसे बेहतर करने, why not we are talking about the society. सिर्फ कम्युनिटी का वही तो नहीं है ना कि कम्युनिटी को ऐसा करना चाहिए, लाइक हमें तो पूरी सोसाइटी को लेकर चलना है, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करना है लोगों का किसी भी चीज को लेकर। अगर कोई भी मसाइल चल रहे हैं यूथ के साथ, और फर्दर जैसा हसन ने कहा, like community and society, like I consider both the same things. Yes, okay. For me, there is so Faiza is actually using both the things in same meaning, right? Okay. So she's just using society. Yeah. Right. Yeah, so for me, yes, because I want to clear my point of view. So like, there is no difference for me for the community and the society, right? Yeah, sure. Right. Just I think just it is just difference of the words, and nothing else. So here we can say society, and there, because obviously I'll be sharing my experiences. So this is how my experience. और फर्दर अभी थोड़ी पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, फर्दर पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। पाकिस्तान में बहुत सारी लाइक देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो यूथ के नाम पे तो काम कर रही हैं, लेकिन उनकी जो मतलब ये कैसे कह सकते हैं चेयरपर्सन या सीट्स वगैरह मौजूद हैं, तो ऐसे लोग के पास इनकी माशाल्लाह से 40 से ऊपर है। लाइक
जब तक वहाँ अगर हम टॉप रैंक पे यूथ को नहीं बिठा रहे हैं तो फिर उस यूथ लेड का क्या मीनिंग है बेसिकली? इस चीज को मैं खुद भी फेवर करूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ साथी राव ने जो बात की, इसको मैं फेवर करता हूँ। जो ऊपर वाली सीट्स हैं जहाँ यूथ के लोग नहीं हैं, जिनकी एज यूथ से ऊपर है, ओवर एज है, और वो यूथ को किस तरह संभाल सकते हैं, और ये काफी इश्यूज आते हैं जो हमने खुद भी फेस किए हैं, और तब जाके हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ पार्ट रहे। तो Exactly. ये इन्होंने बात किया। जी जी। Yes. Okay. So you are basically saying that youth should be represented by youth, right? Exactly. Not by the people who would not even understand the problems of youth. उनको तो पता ही नहीं है वो Yeah, basically अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो लाइक 15 साल से लेकर इट्स लाइक 34-35 का एक एज क्राइटेरिया है जिसमें यूथ को डिफाइन किया गया है एज पर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज एंड एवरीथिंग। तो लाइक आई थिंक जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो इसी क्राइटेरिया के अंदर ही होनी चाहिए यूथ की, नॉट बियॉन्ड दैट। Yes, that's a good point. That's a good point. Yes. मैं ये कहना चाह रहा था, जी जी, जिस तरह मतलब यूथ के लोग यूथ को ही लीड नहीं कर रहे तो कोई और कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि यार ये हमारे वक्त में ये इश्यूज नहीं थे, तो मगर अब वक्त बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं, तो जो यूथ समझ सकती है हमारे इश्यूज की, जो इश्यूज हैं वो इस तरह सोल्व किए जाते हैं। तो अगर वही देखेंगे, अगर वही लीडरशिप में आएंगे तो ज्यादा बेहतर है, इश्यूज को वो अच्छी तरह सोल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली हसन, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बात नहीं है कि यूथ करती नहीं है, यूथ को करने नहीं दिया जाता। यूथ को करने नहीं दिया जाता, यही बात है, यही बात। एग्जैक्टली। सो बेसिकली आप लोगों ने काफी सारे प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए, एंड दैट्स ग्रेट टू हियर कि you guys are so aware and all that. So how would you think, how would you raise awareness about these issues? मतलब कोई आपने तरीके सोचे हुए हैं, कुछ सोचा हुआ है कि how would you raise awareness, how would you aware the youth about their role, कि उनका जो रोल है, जाहिर सी बात है obviously youth is aware but not all of us, all of you, like not everyone is like you, right? So how would you aware youth, how would you motivate? कोई point ध्यान में है? मोहसिन, would you like please, would you start? Yes, Javeria, there are many ways जिसके जरिए जो है वो यूथ जो है प्रोमोट कर सकती है अपनी इंगेजमेंट को। तो जैसा कि मेरा ताल्लुक सिविक एजुकेशन से है, तो मैं उसी पे ही बेस्ड जो है वो बात करूंगा कि सबसे पहले तो अपने आप को इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाएं कि आपके राइट्स क्या हैं। आप शहरी तो अपने आप को कहलाते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां कौन सी हैं। जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप वोट दाखिल करें, आप अपना एनआईसी रजिस्टर करवा लें, ठीक है, और उसके अलावा उस नॉलेज को आप ट्रांसफर करें दूसरों के ऊपर, जो भी आपकी कम्युनिटी में है, सोसाइटी में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो अगर शादी की बात को मैं थोड़ा एम्फेसिस दूं, तो सोसाइटी में जो भी है आपके मतलब फैमिली से लेकर आपकी बाहर जो है आपके फ्रेंड सर्कल में, उसके अलावा जिसको भी आप जानते हैं कि इनको इस नॉलेज की जरूरत है, तो आप ट्रांसफर करें उस नॉलेज को, जो कि उनको इन्फॉर्म सिटीजन बना सकती है। उसके और इसी तरीके से आप अपने आप को एज ए रोल मॉडल भी प्रेजेंट कर सकते हो कि आई एम अ रोल मॉडल, क्योंकि मैं सारे जो भी सिटीजन होने की खिदमात हैं वो मैं सर अंजाम दे रहा हूँ, जो भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मैं उनको फुलफिल कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम जो है सिविक एंगेजमेंट को प्रोमोट कर सकते हैं। और वॉलंटियरिज्म, स्पेसिफिकली वॉलंटियरिज्म को प्रोमोट करना, यहाँ पे एक बस कॉमनली एक स्टीरियोटाइप है कि वॉलंटियर जो होते हैं वो हमारी सिंधी में एक वर्ड यूज होता है, मीन्स वांदा, वेले हैं ये, वॉलंटियर्स मीन्स वेले, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं है। अगर हम वॉलंटियरिज्म की फिलॉसफी को देखें तो उसका मतलब है कि आप उस चीज से सेटिस्फाई हो, ठीक है, आप मतलब उस चीज से सेटिस्फाई हो, आप अपने आप को, अपनी आपकी जो आपकी क्वालिटीज हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, आप उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं दूसरों की खिदमत करने के लिए। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ, मेरे ख्याल से ये एक माइंडसेट है जो कि हमें हमारी यूथ में जो है वो इनकलकेट करना है as soon as possible. So basically volunteerism is a way by which you pay back your society, right? कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, आप you are creating a big difference, you are making a change, right? So it's not a banda work, or it's not a waste of time, right? It's very important. Okay, Faiza, would you like to say something? Actually,
I would second Mohsin. He is very much right that we have to create more, role models. We should be the role models for the youth, right? और हमें ये नहीं उनको कहना चाहिए कि मतलब बहुत सारी यूथ हमारी ऐसी है कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा, बस हम क्या करें, right? हमसे तो कुछ होगा नहीं, हमारी तो कोई बात नहीं सुनेगा, right? So no, this doesn't mean like that. Okay, you have to stand, you have to fight for your right? So ये है कि आप जब तक खुद बैठे रहेंगे तो कोई और आपका काम नहीं करेगा, right? Nobody is going to be doing your work at your place. कोई भी मतलब आपके लिए कुछ नहीं कर सकता until unless you do yourself. So that is why हमें खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा यूथ के लिए, and then we have to motivate them, aware them, and then this is how हमें हर किसी की एक because being an individual you have some responsibilities. Okay, you are active, energetic, healthy, educated. So this is how आपकी वो सारी चीजें you have to put in the society and get some positive some positive changes. So this is what I want to say. That's great. Okay, that's great. Sadi, would you like to? बेसिकली सबसे पहले जो हमने सिटीजनशिप और राइट्स की बात की, ना कि सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बल्कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अलावा भी हमारे जो सिटीजन्स हैं बेसिकली उन्हें पता ही नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट लाइक मोर देन 80% लोगों को ये बात ही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन राइट्स क्या हैं, ठीक है। फर्दर फिर उस पर बात करते हैं कि हम चेंज कैसे ला सकते हैं, कि मैंने तो अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में यही चीज देखी, बिना शोर मचाए यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता, ना अवेयरनेस आप फैला सकते हो बिना शोर मचाए, ना आप चेंज लेकर आ सकते हो। तो लाइक शोर मचाना जरूरी है, लोगों को बताना है भाई ये मसले चल रहे हैं और इन पे काम करना जरूरी है। शादी आई वुड ऐड के दिस इज योर राइट कि आप ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि आप जो है वो पब्लिक असेंबलीज करें, आप पब्लिक गैदरिंग्स करें और प्रोटेस्ट करें अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है। सो दिस इज आवर राइट। चूंकि कोविड-19 चल रहा है तो हम वो शोर नहीं मचा सकते, बट नाउअडेज वी कैन यूज सोशल मीडिया एंड वी कैन रेज अवेयरनेस और हमारी जो वॉइस है वो ऐवानों तक पहुंच सकती है। So I just wanted बिल्कुल ठीक मोहसिन, एक्चुअली मेरा शोर मचाने का मतलब ये नहीं था कि रोडों पे निकल जाओ प्रोटेस्ट करो। बेसिकली शोर मचाने का मतलब है लाइक ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करना, सोशल मीडिया से हो, हाँ वॉइसेस रेज करना ज्यादा से ज्यादा लोगों को, राइट बेसिकली। और पर हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जितने नंबर्स हमारे पास ज्यादा होंगे यूथ के उतनी Here you go. और फिर अगर हम बात करते हैं रोल मॉडल्स जितने भी हैं, लाइक रोल मॉडल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स हैं जो हाईलाइट भी नहीं करते अपने आप को, क्योंकि लाइक मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हूँ और शायद वो मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम में भी नहीं आए हुए लोग, इवन मेरी ही कम्युनिटी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे लाइक आई गेट इंस्पिरेशन। तो रोल मॉडल्स हमारे पास बहुत हैं, लाइक हर वो इंसान रोल मॉडल है जो अपनी फील्ड में या किसी भी कम्युनिटी से या कहीं पर भी अपने बेशक एक ऑफिस के अंदर ही अपनी पॉजिटिविटी से अपना काम कर रहा है और एक माइनर सा भी चेंज लेकर आ रहा है सोसाइटी में। तो मेरे लिए वो इंसान भी रोल मॉडल है। रोल मॉडल बहुत सारे होते हैं, मतलब लाजमी नहीं कि एक जो बंदा फ्रंट आके बात करे तो कोई कम्युनिटी के लिए या अपने लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकता है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको इंस्पायर करता है या अपने पॉजिटिव एक्ट से सोसाइटी में चेंज लेकर आ रहा है, चाहे वो कोई माइनर एक्ट ही हो, मेरे लिए पर्सनली वो रोल मॉडल है। मैं खुद लाइक बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में आके नहीं है अपने आप को शो करते या एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री के तौर पे रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर मेरी ही कम्युनिटी से, तो आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम एज वेल। सो मेरे लिए वो भी रोल मॉडल है मेरे। तो लाइक हमारी सोसाइटी वेरी बढ़िया रोल मॉडल्स, लाइक ईच एंड एवरीवन इज लाइक इंस्पायरिंग समवन इन देयर लाइफ। Okay, basically Sadish, should I reference you like you are actually trying to say कि हमें youth को motivate करने के लिए, उनको awareness देने के लिए we should actually try to promote our role models, right? कि हम लोग role models को promote करेंगे, we have a lot of people like this who can be role models. Basically रोल मॉडल्स को प्रमोट करना से बेहतर है कि हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज के जहाँ पे लोग आके अपना पॉजिटिव एफर्ट दे सकें, अपनी पॉजिटिविटी सामने लेकर आ सके। डिफरेंट जैसे कि हम कहते हैं अभी रिसेंटली जैसे हम बात कर रहे थे, डिफरेंट हम कोई सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती हैं,
डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं बेसिकली, तो उनमें डिफरेंट लोग आके अपना काम दिखा रहे होते हैं, अपने आप को शो कर रहे होते हैं, अपनी विजिबिलिटी बेसिकली शो करते हैं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में और ये टैलेंट हमारे पास है। सो बेसिकली वो ऑटोमेटिकली जब वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी पे, तो वो रोल मॉडल के तौर पे कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो हमें इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के फेस्टिवल्स की जरूरत है जहाँ लोग आकर अपने टैलेंट, अपने एक तरह से जो स्किल्स हैं उन्हें हाईलाइट कर सके, क्योंकि स्किल्स और टैलेंट बहुत है हमारी यूथ में, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो या दूसरे और फर्दर हम बात करें उसके अलावा भी। Hassan. Okay, yes, Hassan. I would agree with Sadi that this is the same thing that we were discussing in the beginning as well, that we should create the platforms for the youth who have the hidden talent within them, so that they come up and show their talent, and with that they can achieve more, and then in this way they will benefit themselves in the society with their skills and abilities. Okay. इस तरह आप को बोलते हैं यार हमने एक फोरम, यूथ फोरम या एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, आप ज्वाइन करें। तो यार नहीं, ये एक एनजीओ का काम है। एनजीओ है ना, नेशनल जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक गलत मतलब से लिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोगों को ये बताना नहीं, जो आप समझ रहे हैं वो एनजीओ नहीं है ये। तो सेकेंडली हम अवेयर इस तरह कर सकते हैं, जो अगर मेरी फील्ड एजुकेशन है तो मैं कहीं एजुकेशन के फील्ड के थ्रू ही मैं अपने जो भी दोस्त हैं, अहबाब हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको समझा सकता हूँ। अगर मेरी फील्ड मैं लायर हूँ तो मैं अपनी जो मतलब मेरी फील्ड है उससे रिलेटेड मैं लोगों को अवेयर कर सकता हूँ। मेन इशू ये है, अवेयरनेस का तरीका होता है एक, तो मेन इशू क्या है वो समझते हैं नहीं होता हर किसी को कि नहीं यार ये जो एनजीओ का काम या वॉलंटियर काम है ये अच्छा काम है और इसमें कोई मतलब गलत काम नहीं है, ना वर्कर वाला काम है। जो हमारा टैलेंट है, जो हम कर सकते हैं वो करें हम। हसन, I really appreciate your point. आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारी यूथ इज नॉट मच अवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, राइट? कि हम लोग एक्चुअली करना क्या है, हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट होती कैसे, सोसाइटी के लिए काम कैसे किया जाता है, राइट? उनको बस एक ही तरीका पता है कि झंडे पर करके प्रोटेस्ट शुरू कर दो या ऑल दैट, राइट? एक्चुअल जो काम एक उनको टेबल टॉक, उससे अवेयरनेस नहीं है। जी, उनको टेबल टॉक पे नहीं लेके आए कभी। और उसमें गलती उन लोगों की है जो लीड कर रहे हैं। लीडरशिप अच्छी नहीं है हमारी। सही। Asna, I really appreciate. And what's the theme? So I was saying कि Youth Day is basically it's a day celebrated by youth for youth, right? जिसमें हम क्या होता है कि हम ना सिर्फ जो है we try to address the problems faced by youth, मतलब जो उनके मसले हैं, how can we aware youth, उन मसलों को एड्रेस कैसे किया जा सकता है। ना सिर्फ हम ये सारी चीजें उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं, ना सिर्फ हम ये डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, बट ऑल्सो वी ट्राई टू सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स, राइट, एंड देयर सक्सेस। कि जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, उनकी सक्सेस होती हैं बाय, राइट? सो इस दफा का जो हमारा यूथ डे का जो हमारा थीम है बेसिकली youth engagement, right, at a global level basically, and what changes can occur if we engage youth. Is that so, Mohsin? Am I right? Would you like to add something in it? Sure, Javeria, I would love to add in it. Basically every year yes. on 12th of August जो है it is being celebrated worldwide. International Youth Day celebrate किया जाता है। It is like from United Nations. तो इस साल की जो थीम है वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, के लोकल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो है वो हमारी यूथ किस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, जो कि ग्लोबल जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट बन रही है, जो कि वो SDGs को अचीव करने में मदद कर रही हैं। So so it is very great to celebrated by GLIM, and I'm glad to be part of this panel discussion. Okay, so anyone else would like to add some ending comments, please? Anyone would like to give? जी, यूथ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब जिस तरह भी कोविड-19 हुआ है हमारे पास गुजरा है, तो इसमें जिन लोगों ने अपना अच्छा काम किया यूथ में से, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक्चुअली जो मैं SDGs है उन पे काम किया जाता है। मैंने एक इवेंट अटेंड किया था बिफोर कोविड-19 और हमारी यूथ में पता ही नहीं है SDGs होता क्या है।
मतलब इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता मोस्ट ऑफ दी, Yes. मतलब ये नहीं है, काफी लोगों को पता भी है, Yes. Exactly. मगर उस पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जो इम्प्लीमेंट ही कैसे करेंगे तो उनको पता ही नहीं है इसकी कितनी काइंड्स हैं और मतलब कौन कौन सी फील्ड हैं, तो ये हसन, चीजें हैं तो लोगों को जी जी सॉरी टू जी कट द बोलें, पॉइंट, जी आई वुड बोलें जस्ट आप। एड Yes. आई वुड जस्ट एड के लोगों को अननोइंगली वो काम तो कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई वॉलंटियर वर्क किसी नहीं नहीं ऑर्गेनाइजेशन के काम साथ काम कर नहीं रहा नहीं होता है। काम जी 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 मैंने कहा काम तो कर रहा होता है, एजुकेशन है, हेल्थ में एग्जैक्टली काम सब कर रहे हो, तो उनको ये नहीं लेकिन दे डू मतलब नॉट नो कि हम SDGs का एक नहीं पता बड़े होता कि एग्जैक्टली हम बड़े किसी जो है वो मिशन के ऊपर, वो हम बड़े टारगेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी थोड़ी सी जो है वो अवेयरनेस होना तमाम जरूरी है। जैसे कि 16 हमारे जो है वो Also उनको हमारी Yeah. youth is, yes, exactly, so youth is working but they are not aware of के how great impact they actually are creating. और एग्जैक्टली मतलब अगर उनको ये सब चीजों से अवेयरनेस हो तो what great impact they can create further, कि हमें उनको जब पता चल जाए exactly इन goals का, इन सारी चीजों का, तो already वो इतना काम कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, right? That's what you guys are trying to say. एग्जैक्टली Is that जैसे so? जी जी आई वुड जस्ट एड के देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे लोग जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम करें, स्पेशली यूथ जो है वो अभी कोविड-19 में आई एम विक्टिम ऑफ यू नो व्हाट वी कैन से आई एम लाइक विटनेस्ड सॉरी आई एम विटनेस ऑफ मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कि काम कर रहे थे कोरोना रिलीफ एक्टिविटीज में। हसन वाज डूइंग अ ग्रेट एंड वंडरफुल जॉब ड्यूरिंग जो है वो क्वारंटाइन के दिनों में। ही वाज going from Karachi to far flung areas और वहाँ पे वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एंड अदर स्टफ। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारी जो एक्टिविटीज़ थी सिविक इंगेजमेंट की, पहले हम कम्युनिटीज़ में जाया करते थे, उनके साथ हमारा डायरेक्ट इंगेजमेंट होती थी हमारी। बट हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज़ किए और वहाँ पे हमारा जो सोशल वर्क था, जो हमारा स्पेसिफिक सिविक एजुकेशन को प्रमोट करने की एक्टिविटीज थी, उनको हमने कंटिन्यू किया सोशल मीडिया के थ्रू। तो हमारी जो फर्दर यूथ है, मैं जस्ट उनको ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके सराउंडिंग्स में आप किसी प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व है या अगर आप वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व होना चाहते हैं अपने आप को सिविकली और उसके अलावा एक्टिवली इंगेज रखने के लिए फॉर बेटरमेंट ऑफ योर कम्युनिटी एंड सोसाइटी, तो आप किसी ना किसी लोकल एनजीओ या कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इवन उसमें अपना जो है वो भरपूर तरीके से कंट्रीब्यूट करें। आपकी कोई भी स्किल है, अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप अपनी जो है वो राइटिंग स्किल्स के थ्रू मतलब वॉलंटियरिज्म कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिटी सर्विस में मतलब कम्युनिटीज में जाना और डायरेक्ट एंगेजमेंट करना, इन चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हो, फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हैं, दे कैन क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि यूज एग्जिस्टेंस प्लेटफॉर्म जो भी आपके पास हैं, आप उनको यूटिलाइज करके किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इस मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इंगेज रखें। Yes, absolutely, Mohsin. Acha, Faiza, would you like to give any ending comments? Because we have received from almost everyone except you. Yes, actually, what I was thinking that first of all, we should aware the youth, then we should encourage the youth, and the third thing, we should appreciate the youth. Okay, so this is a chain, this goes together, right? When we aware them, right, when they get aware, now what they have to do, we have to encourage them, whatever they are doing for the society, right? And when they are doing that, they need the appreciation. So we should appreciate them as well. Okay, so these three things I would be saying that these are the three important things which our youth, really require. They need it. Okay, so let me rephrase whatever you all said. Okay, basically what all of you actually said कि basically सबसे पहले तो हमें youth को aware करने की जरूरत है कि what exactly they should do, right? Community service के लिए क्या करना चाहिए, SDGs क्या है, वो goals क्या है, फिर उसके बाद कैसे उनको पूरा करना चाहिए, उसके बाद celebrate करना चाहिए जो वो कर रहे हैं, acknowledge करना चाहिए उनके role को जो वो already play कर रहे हैं. Is that so? Yeah, जवेरिया, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी बेसिकली एंडिंग कमेंट्स के तौर पे। या हमारे यूथ है ना बहुत सारे ऐसे कि वो दूसरों की मदद करने निकल जाते हैं। पहले अपने मतलब आप खुद स्ट्रांग हो तो आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ना, पहली बात तो हो गई है। और दूसरा लाइक एक तरह से जो हमारे बड़े सही absolutely that's good, that's a very brilliant comment.
So with that, we would like to end the session, and I think it was great talking to you all. बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. Anyone else would like to say anything, or should we just end it? Just want to say Most- thank you for making me the part of this communication, this discussions. I really feel good after meeting you all. That's it. Same here, Faiza. माशाल्लाह It was a बहुत pleasure अच्छा knowing you all. जी हसन, please.